सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले आईसीसी विश्व कप टी20 2022 पुरुषों के पहले सेमीफाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 2020। This is All India Radio. In a short while from now, we will bring to you live commentary on the ICC Men's T20 World Cup 2020 first semi-final match to be played between Pakistan and New Zealand at Sydney Cricket Ground. But before that, we bring to you a special program, First Ball 2020. First Ball 2020. Hello, good afternoon, namaskar. ICC Men's T20 World Cup's first semi-final to be played at Sydney, and thankfully with the blessings of weather gods, it's going to be nice and sunny today. That's what is predicted. Well, in the studio, we are going to predict many things with the help of our experts in the studio. I am Geetanjali Soni, with me is Adesh Gupta. और हमारे साथ हैं हमारे दो खास मेहमान, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर जया शर्मा और वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश राज। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल्सो आई थिंक राइट इन द बिगिनिंग हम अपने कॉलर्स का भी स्वागत कर लेते हैं। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 23421084, 23421085 नंबर है। कोड आपको पता है 011। अगर आप हमें देखना सुनना दोनों चाहते हैं तो आप प्रसार भारती स्पोर्ट्स के ज़रिए भी हमें देख सकते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें आपके कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान बहुत ही इवनली प्लेस्ड टीम हम कह सकते हैं। इसमें कौन सी टीम में क्या रियली खामियां रह सकती हैं वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। तो जया, टू स्टार्ट विद यू, हाउ यू सीइंग बोथ दीज टीम्स राइट नाउ? I think it will be a cracker of a match, and the way New Zealand has been playing in this tournament was incredible. And then Pakistan, out of nowhere, picked up the pace, and they got the berth in semi-finals. So it's going to be a classic contest. और सीधे चलते हैं टॉस पर कि क्या हो रहा है। Babar Azam from Pakistan and match referee in Chris Broad to make sure everything is done correctly. Right, Kane, you have the coin. Heads is the call. Tails it is. Kane, like it's landed your way. What are you going to do and why? We're going to have a bat. Used surface, not much grass on it, so it used a bit first up. Are you going to surprise us and say any changes to your team at all? We're going with the same team. Yeah. Familiarity, is it help or hinder things? You've played on this pitch before against Australia, a couple of games here as well. Yeah, same pitch but different, I reckon. So it's important we adjust to those changing conditions and make sure we assess early and try and stick to our plans as a unit. So when you say changing conditions, not looking at that sort of 200 mark? I mean, well, we'll have to wait and see, won't we? But yeah, we'll just have to assess conditions. There's a few unknowns, as there always are in these sorts of tournaments, so important we just stick to our plans, really. You've been here, done that before. Things change for you as captain with the team coming into the finals? It's an isolated match, and so for us it's really focusing on this game, what we want to do here in the different conditions, and really just try and express ourselves with the cricket that we've been playing. Yeah, all the best today. Cheers, thank Cheers. you. Thank you. Bubba, bowling first, what do you make of that? Yeah, definitely, but we are also batting first, but the task is not our hand, so we will try to take early wickets and put pressure on them. Okay. Any changes to your side from the match against Bangladesh? No, we have a same team. Okay. It's been a slow start for Pakistan in this series, and now all of a sudden you've got a real move on. Is Pakistan getting sort of closer to its best cricket? Yeah, we have our first two matches, they coached us, but the way team playing last three matches, we have a confidence as a team, and we carry that momentum in this match, and we will try to our best in the match, and looking forward to them. And confidence also must come from playing in the Tri-Series against New Zealand. What did you learn about them then? Yes, we have a lot of confidence over there. We are playing in a triangle series, but New Zealand is a quality fast bowler, quality batsman, so we will try to calm and relax and play according to situation, and looking forward to the match. Confident to get through to another final, first one since 2009? Yeah, we have played, I think, the last two finals, so I hope third one also, but we are trying to focus on this match and try to win this match. All the best tonight. Thanks, Bubba. There you have it. New Zealand have won the toss here tonight in the first semi-final, and they'll bat first. Well, as predicted. So bat first. New Zealand won the toss and chose to bat first. So I'll go to Rakesh.
So it's not going to be very difficult for Pakistan for the kind of pace attack they have and the confidence they are talking about. So was this predicted? Yeah. I mean, the team, any team was expected to bat first. I mean, you win the toss, you bat by choice. So that is, of course, expected. Well, what should be the approach? Which would be the obvious inference from here on? I think New Zealand, if you recall, they played their first match on the same strip. And they played a different game again. I mean, on a different strip against Sri Lanka. Right. And if you recall, Kane Williamson had said that we came back to the same venue, all right, but the pitches were completely different. Now, this particular strip is the same one where they played Australia and made 200. And today again, they are going to bat by choice. They're going to, look forward to that. They are in a very familiar space. They're in a very comfortable space. And then against that Australian attack, which is a pretty good attack, as we all know, these guys scored 65 runs in the first 6 overs. So they're really, off to a flyer. I think a lot of things have gone in favor of New Zealand already. Winning the toss, coming to the same this and getting to bat on the same strip. Right. Now, because Pakistan hasn't batted on, here. So there will be a little unknown factor for Pakistan, all right. But then now that is all, that has to be pushed into the background now. Now you are reached the point where you need to go out there and perform. तो जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है तो इसी ग्राउंड में उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया को 89 रन से और उनका कारवां तो सीधे पहुँचा ही है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए अगर जिया जी, तो ऐसा लगता है कि जो अपना लास्ट ग्रुप मुकाबला खेल रहे थे वो तब तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज की फ़्लाइट से पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, लेकिन आयरलैंड ने उन्हें जो संजीवनी दी, तो आपको लगता है कि ये एक बहुत सुनहरा मौका है पाकिस्तान के पास अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी इमेज को बदलने का? जी बिल्कुल, जहां आप बिल्कुल कंटेंशन से बाहर निकल गए थे इतने बड़े मेगा इवेंट में, तो ये बहुत बड़ा मौका है। वो बाय चांस आया क्योंकि दिस टूर्नामेंट हैज़ बीन अ टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स और आई थिंक थैंक्स टू द अदर टीम्स फॉर पाकिस्तान दैट इतनी सारी अपसेट्स हुई एंड दे गॉट अ ब्रिलियंट चांस आफ्टर out of nowhere. So Rakesh, we always talk about the psychological advantage. Finally, it boils down to what kind of mental pressure a team can really handle. So when we talk about New Zealand and Pakistan, I mean, clearly Pakistan had a very roller coaster ride, but right now, do they have the psychological advantage considering the 1992 people are talking about? And of course, I think they are quite a fiery team at this point. Well, if you connect it to 1992, I think too much has happened. Too much has happened since then, yes. Yesterday, Kane Williamson was asked the same thing. He says, well, in 92, I was 2 years old. So, I mean, he just put it into perspective and he said, listen, let's not even go into that. That was a different format, different cricket altogether. 30 years ago, cricket was different. Here, of course, the fact remains that even then, Pakistan was on the brink of elimination. They came back from nowhere, right, and they went on to win the cup. Okay, it is fine for the fans to involve in all these kind of conversations, but for the teams involved, I don't think it really amounts to anything. But yes, you spoke about the psychological space. I think New Zealand is in a fantastic space. The reason being they've remained calm and calculated. They are very good when it comes to planning. But when you look at Pakistan has had the worst start. 2 out of 2, the 2 matches which they should have won, could have won, they lost both. From there to be in this position, now they are on a high. They're clearly on a high. They believe that, that people's prayers are with them. It's not just cricket. It is the wishes of an entire nation. Plus, their middle order has started clicking. Their openers were struggling, but despite all that, they have reached this stage. So they have a lot of positives to look at and a lot of self-belief, which was not there after they lost to Zimbabwe. So they are in a much better space, and Pakistan being the most unpredictable side in the cricketing world, you can expect anything. हालांकि पाकिस्तान के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, कहना राकेश राव का, लेकिन पाकिस्तान 6ठी बार 2020 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है और 28 में से 17 मुकाबले उसने न्यूजीलैंड के खिलाफ जीते हैं और 11 मुकाबले न्यूजीलैंड ने जीते हैं। तो क्या पुराना रिकॉर्ड कुछ मदद करेगा? पुराना रिकॉर्ड देखिए स्टार्ट्स के लिए काम आता है डेफिनेटली, लेकिन जो पुराना हो गया वो पुराना रहता है। ऑल्दो पाकिस्तान ने अभी ट्राई सीरीज़ खेली न्यूजीलैंड में और तीनों मुकाबले उनके साथ जीते, बट ये ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम, डिफरेंट डे,
एंड आई थिंक जो एक वर्ल्ड कप का जो एक प्रेशर रहता है दैट टू अ नॉकआउट स्टेज, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा यहाँ पे, एंड वी हैव टू सी कि कौन उससे उभर के आता है। और जया, हमारे जो प्लेजर है, हमेशा हमारे कॉलर्स रहते हैं हमारे साथ जुड़ गए। हमारे पहले कॉलर, तो हमारे जो सेमीफाइनलिस्ट मैच के पहले कॉलर हैं, क्या कहना है उनका जानते हैं। हेलो जी मैम, नमस्कार। मैं तापस कुमार हाजरा, विलेज बोनीली, डिस्ट्रिक्ट हुगली, वेस्ट बंगाल से। जी नमस्कार। और उपस्थित विशेषज्ञों को भी मेरा प्रणाम। जी प्रणाम जी सर, मैं कहना चाहता हूँ, आज मेरा दिल कह रहा है पाकिस्तान जीतेगा और कल हमारा भारत जीतेगा और पाकिस्तान बनाम भारत फाइनल मैच होने का चांस है। मेरा ये दिल कह रहा है, बाकी आप लोग क्या सोचते हो बताने का कोशिश कीजिए प्लीज। जी, हमारे जो एक्सपर्ट सोचते हैं वो आपको बताएंगे। फिलहाल एक और कॉलर है हमारे साथ, जुड़ते हैं उनसे। हेलो जी सर। हेलो। नमस्कार। नहीं, ऐसे तो बात नहीं हो पाएगी आपसे। एक और जिया जी, यहाँ जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरेगा तो उनका जो टॉप ऑर्डर है पूरी टूर्नामेंट में काफ़ी नर्वस नज़र आया, उड़ता हुआ नज़र आया। तो आज कितनी उम्मीदें कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम से? ऑल्दो लास्ट मैच में उन्होंने 50 रन की पार्टनरशिप क्रिएट करी थी, बट यहाँ पे ये देखना होगा कि जो पेस बैटरी है, अटैक है न्यूजीलैंड का, वो बहुत क्वालिटी है। टिम साउदी हैं, लॉकी फर्ग्यूसन हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं। तो आई थिंक जहाँ पे दोनों ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो होता कि एक ओपनर स्ट्रगल कर रहा होता, या दोनों ओपनर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पहले तीसरे बैट्समैन से शुरू कर रहे हैं अपना गेम, क्योंकि दोनों तो स्कोर नहीं कर रहे। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर उनको जीतने के लिए, क्योंकि जो कम्पिटिटिव टारगेट होगा वो 180 प्लस डेफिनेटली होगा इस ग्राउंड पे। अगर आपका ओपनिंग पेयर फायर नहीं करता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे कंसोलिडेट करना मिडिल ओवर। बट राइट नाउ न्यूज़ीज आर बैटिंग फर्स्ट, सो वी रियली हैव टू टॉक अबाउट देयर बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट। सो आई थिंक दे आर प्रीटी होपफुल ऑन देयर बैटिंग साइड एज वेल. So whom are we really looking in terms of, who's going to really score well for New Zealand, put up a good score? Well, they have their openers who are in great nick. Although they haven't been very consistent there, but then you can expect that these two guys will be looking to really go, hammer and tongs. Devin? Especially, if you ask me, Allen is one of those guys who straight away looks to hit the top gear. Okay. He's not the one who will, take time to, play out an over or two like we see Rohit or, like Rahul do. Correct. He's a different kind of an opener. He looks to strike at 200 straight away. All right. So that is one. Convoy, of course, has been in good nick. Kane Williamson is showing signs of returning to his best, because then he needs to take a bit of chances. If he doesn't take chances, then we'll see that he will also bat like Rizwan or like Azam. Rakesh, we're here. We have to take chances. Our callers are holding on. Hello. जी, मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा। अच्छा, आप पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, या आप बता रहे हैं? जी, मैं जानना चाहती हूँ। अच्छा जी, आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारा कार्यक्रम सुनना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे जरूर से। अनदर कॉलर भी है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम नईम मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है वरेगाम। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, फरमाइए। जी सर, मुझे इस मैच से कोई लेना देना नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में, जो हमारे स्पिनर है, चाहे अश्विन साहब है या अक्षर पटेल है, अभी तक वो जादू उन्हें नहीं किया जो बाकी स्पिनर ने किया। क्योंकि कल हमारा जो बड़ा मैच है, सेमीफाइनल मैच है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। क्योंकि बाकी स्पिनर ने बहुत अच्छा किया है, हमारे स्पिनर ने वो काम नहीं किया है जो करना चाहिए उन लोगों को। जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, रिगार्डिंग टुमारोज मैच विल टॉक लेटर, बट राइट नाउ वी हैव अनदर कॉलर। हेलो। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी मैम, गुड आफ्टरनून। अपना नाम बताइए। मैडम, हिसार हरियाणा से बात कर रहा हूँ, प्रवीण बोल रहा हूँ। हाँ जी प्रवीण, कहिए क्या कहेंगे। मैडम, मुझे तो यही लगता है कि देखो, न्यूजीलैंड की बहुत ज्यादा मेहनत है इस मैच के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, तो न्यूजीलैंड जीतना चाहिए आज। जी, इतना चाहिए। जैसे इजी यही रहेगा, अच्छा यही रहेगा कि मेहनत जीतने की वो आगे पहुंचे जी, और पाकिस्तान यहीं से बाहर हो जाए। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार हमसे शेयर करने के लिए। एंड राकेश, यू आर स्माइलिंग एंड आई नो व्हाट यू आर स्माइलिंग अबाउट, बिकॉज आवर कॉलर्स, दे डू हैव देयर फेवरेट्स, बट they do know that the team who has played good cricket should really come ahead. Of course, they understand. Yeah, they understand what that it actually means. But at the same time, I've been hearing this for a long time. A lot of cricket experts, a lot of ex players, commentators.
they all have been saying that it's likely to be an India-Pakistan clash. But the truth is, which don't normally people say it on air, or they don't talk about it, in a certain tone, is there is a large percentage of people in both countries. Right. They don't want the other country to win. That means they'd rather not have an India-Pakistan clash. They want their country to win, all right. But then that is also equally true. Of course, if there is a match between India and Pakistan, that will take the emotions to a different level. And that is what they experienced when the two teams clashed at the MCG last Sunday. But the fact remains that yes, it'll be exciting for the game, exciting for the people, and of course, there's a lot of other things added to it. But having said that, yes, both these games are going to be pretty close. Very difficult to take a call here. और जय जी, हारिस राउफ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, तो आपको लगता है कि टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर आज सबके लिए बहुत ही परीक्षा की घड़ी है? परीक्षा की घड़ी ऑफ कोर्स, आपका सेमीफाइनल है और आपको 180 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, और जिस तरीके से यहाँ पे विकेट है, विकेट में बाद में थोड़ा स्पिन फैक्टर भी है, तो आई थिंक और स्पेशली पाकिस्तान चेस कर रहा है तो उनको बड़ा संभल के खेलना पड़ेगा. अगर आप एक्सप्लोसिव पारी नहीं देखेंगे ओपनर से, तो कंसोलिडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिडिल ओवर्स में. जी बिल्कुल. और जहाँ तक हम बॉलिंग की बात करें तो देखिए राकेश, ये तो मान के हम चलते हैं कि पाकिस्तान के पेस अटैक को तो टच करना इस वक्त काफ़ी मुश्किल है. और शाहिन शाह की आप बात करना चाहेंगे द वे माय गॉश, जैसे वो फॉर्म में आए हैं, एंड आई एम श्योर द न्यूजीलैंड नोज अबाउट देयर स्ट्रेंथ एज वेल, ऑल्दो दे आर वेल बैलेंस्ड टीम, दे नो वन ऑन बेसिस पे कौन से क्रिकेटर को कैसे हैंडल करना है. बट द फैक्ट रिमेन्स द फैक्ट. देखिए, हमने ये चीज़ भी देखी थी, अगर हम इसी पिच पे जब पाकिस्तान खेली थी साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका का भी अटैक जो है, पेस अटैक इज सुप्रीम, आई मीन द फैंटास्टिक अटैक. उस अटैक के अगेंस्ट जिस अंदाज से पाकिस्तान ने बैटिंग की थी, मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप की वो पहली टीम थी जिसने पहले 4 विकेट खोने के बाद 142 रन ऐड किए हैं. ये कहीं नहीं हुआ है. 11वें ओवर के ख़त्म होने से और 20वें ओवर के शुरू होने से पहले के जो 8 ओवर थे, उन्होंने 100 रन ऐड किए हैं जब आपका टॉप हाफ आउट हो चुका है. तो ऐसी जिस अप्रोच से पाकिस्तान केपेबल है बैटिंग करने की, और इसी पिच पे उन्होंने दिखाया था, तो अगर उनको विड्थ मिल जाए जैसे कि साउथ अफ्रीकन ने उनको दिया था, पेस तो अपनी जगह है, लेकिन अगर आपके पास पेस है और अगर आप बैट्समैन को विड्थ दे रहे हैं तो मतलब 180-200 रन बोर्ड पे लगेंगे ही लगेंगे. आज मुझे यही देखना है कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रही है तो क्या जो न्यूजीलैंड के जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं, बोल्ट, साउदी एंड लाइक लॉकी, ये 3 उनको वो विट देते हैं कि नहीं देते हैं. अगर विट नहीं दिया, लाइन पकड़ के बॉलिंग की है, तो पाकिस्तान को तकलीफ हो सकती है. और इसी तरह से अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने इनके टॉप ऑर्डर को अगर वो विट दे दिया, तो फिर तो देखिए, फिर तो रनों की बौछार है यहाँ. जी बिल्कुल. जैसा कि राकेश ने कहा कि जो दक्षिण अफ्रीकी टीम है पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाई, खासकर तेज गेंदबाज एंगडी, रबाडा तो और पार्नेल, लेकिन यहाँ जो न्यूजीलैंड का अटैक है, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड के फील्डर बहुत सहयोग करते हैं? जी बिल्कुल. हमने एक बड़ा अमेजिंग कैच देखा न्यूजीलैंड टीम की ओर से. आई मीन दे आर ग्रेट एथलीट्स, दे आर जस्ट नॉट इन दिस स्पोर्ट, बट आई थिंक बेसिकली दे आर ग्रेट एथलीट्स, एंड वो एथलेटिज्म उनके बॉडी लैंग्वेज में दिखता है. और जिस तरीके से वो फील्डिंग, और देखिए वाइट बॉल क्रिकेट में फील्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है अदर देन बैटिंग एंड बॉलिंग से. And our very important department also is our callers. Another caller we do have right now. Hello. हेलो, नमस्कार. नमस्कार जी, नाम बताइए. जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरभजन सिंह तोमर बात कर रहा हूँ. हाँ जी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा. पुराना प्रदर्शन कोई काम नहीं करेगा. और शुभकामनाएं मेरी पाकिस्तान के साथ है, कि पाकिस्तान मेरा पड़ोसी है. अच्छा जी, चलिए, बिल्कुल ठीक बात है. जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा. देखते हैं दूसरे कॉलर क्या कह रहे हैं. हमें आदेश. हेलो जी नमस्कार सर. नमस्कार, प्रोग्राम में आपका स्वागत है. अपना नाम बताइए. जी मैं बिहार के बांका जिला से परमवीर रावत बोल रहा हूँ. जी रावत जी, कहिए. सर जी, मैं सबसे पहले तो खुश ये हूँ कि आप बीबीसी के वरिष्ठ उद्घोषक हैं. जी बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं बीबीसी सर नियमित सुनता हूँ, और आपकी जो खेल समाचार है वो दमदार आवाज में सुनकर बहुत खुश होता हूँ. जी फिलहाल आप इस मैच पर आ जाइए. सर मेरा कहना यह है जी, न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी वर्ल्ड कप में आंकड़े के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है जी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है सर कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान को शिकस्त देने जा रही है. जी
फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राकेश, यहाँ पर आंकड़े की जहाँ तक बात है तो वो ज़रूर काम करते हैं, लेकिन आप भी इस बात से सहमत है कि जिस दिन जो टीम अच्छा खेलती है वो जीतती है। लेकिन जो न्यूजीलैंड का पेस अटैक है, हमने देखा कि पिछले कुछ मुकाबले वो भी स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पिछले 2 मैचेस अगर आप उनके देखें, उन्होंने अपने पहले 6 ओवर में पावर प्ले में कोई विकेट नहीं लिया है। एक ही टीम है जिसने कि 2 लगातार मैचेस में पावर प्ले में दे ड्रू अ ब्लैंक। हालांकि पहले 2 मैचेस, क्योंकि उनको सिर्फ 4 मैच मिले हैं, बाकी टीम्स को 5 मैच मिले हैं खेलने को, उनको 4 मिले हैं। तो जो 4 मैच जो उनको मिले उसमें उन्होंने पहले 2 में तो बहुत अच्छा किया, एक में 2 विकेट, एक में 3 विकेट, मतलब 3-4 विकेट उनको मिलते रहे हैं, चलिए ठीक है। लेकिन पावर प्ले में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो लेकिन उसके बावजूद देखिए उनको फ़ायदा क्या रहता है कि जब आप रन पहले लगा देते हैं, उस टीम के जीतने के पीछे जो उनका जो बहुत बड़ा फैक्टर है, जो पाकिस्तान के पास शायद ना हो, एक है कैप्टेंसी। अगर आप दोनों की कैप्टेंसी देखें, न्यूजीलैंड की बेटर है। दोनों की फील्डिंग देखें और कैचेस ना ड्रॉप करने का अगर परसेंटेज देखें तो भी न्यूजीलैंड का बेटर है, ठीक है। उसके ऊपर अगर ये 170-180 लगा देते हैं तो इनके पास बॉलिंग इतनी सक्षम है कि ये टीम को रोक रही है। 200 लगा दें तो खैर उन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया का जो हशर किया वो तो हमने देखा ही। लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस ड्रॉ करने के लिए बहुत से ऐसे कांस्टेंट फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान के पास फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, बट राइट नाउ पाकिस्तान के पास जो दिखाई दे रहा है वो एक फायर पावर, वो कॉन्फिडेंस, जस्ट दे कुड डू एनीथिंग बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज फ्रॉम हियर, दे ओनली हैव टू गेन बिकॉज दे वर कंप्लीटली रिटन ऑफ इन दिस वर्ल्ड कप। एंड राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड इज द टीम who believes in man-to-man marking system. They know they have read the game well, they are pretty calm, but are they chokers, Jaya? हम ये कह सकते हैं मोस्टली न्यूजीलैंड फाइनल तक जाती है लेकिन कहीं वो जाके चोक कर जाते हैं, क्या रीज़न क्या है इसका? I think I wouldn't say these are the New Zealand team is chokers exactly, but yes, I mean if you will not play your best cricket in the knockout stage, then you are done. Yes, it's not good enough then. Yeah, of course. लेकिन राकेश, आपको लगता है कि न्यूजीलैंड ने पिछले 2-3 साल में जिस तरह का ज़बरदस्त खेल दिखाया है, पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में थे, आईसीसी ट्रॉफी उन्होंने जीती टेस्ट क्रिकेट में, और वनडे के वर्ल्ड कप के फाइनल में थे, तो बहुत बदल चुकी है अब न्यूजीलैंड की टीम। अरे जी, मैं अभी बस यही कहने वाला था कि ये टीम जो है सबसे कंसिस्टेंट टीम है। ये जितने सेमीफाइनल खेलती है लोगों को नज़र ही नहीं आता है, और फाइनल भी खेली है, जीती नहीं है। हालांकि इनका हाथ बिल्कुल ट्रॉफी के पास तक पहुंचता है, ये उसके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन इनके हाथ लगता नहीं है। Exactly. और ये हमने देखा है कंसिस्टेंटली। हालांकि टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी इनके हाथ ही है, और वो भी उन्होंने एक न्यूट्रल वेन्यू पे जीता था। लेकिन ये टीम को मैं मानता हूं कि आज ये कहना इस मैच से पहले कि कौन सी टीम फेवरेट है, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों के पास फैक्टर्स ऐसे हैं जिनसे कि वो काफ़ी एनर्जी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान हैज़ नथिंग टू लूज, यस दे हैव समथिंग टू लूज, यस, बट देन जहाँ पे थे जो उनके लिए एक तो उनको जिस हिसाब से हॉलैंड ने एक खिड़की खोल के दी, इन्होंने आके बांग्लादेश को हरा के वो जो डोर था टू द सेमीफाइनल, वो दरवाजा ही तोड़ दिया, ये तो बिल्कुल घुस के आ गए। तो ये जो चीज़ है, जब आप इस स्पेस में रहते हैं, इस मेंटल स्पेस में रहते हैं, आप कमाल की क्रिकेट खेल सकते हैं। और जय जी, बस एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि पाकिस्तान के ज़्यादातर बैट्समैन जब आउट ऑफ फॉर्म हैं तो कितना स्कोर आप सोच रहे हैं कि बना सकते हैं पाकिस्तान के लिए? अभी तो न्यूजीलैंड टीम बैटिंग कर रही है, तो आई थिंक would like to see New Zealand touching 200 plus mark. 200 plus on this ground. Well, quite ambitious one. And quickly from you, 180. I'm looking at anything in excess of 180. I just love doing because post this scoring we will talk about it, but right now thank you so much whatever we have spoken in the studio. You have been always of a great value. Thank you, Jaya, for joining us. Thank you so much, Rakesh. For having us. Thank you, Adesh, and this is Gitanjali Soni. Again we say this is the first semi-final. Enjoy every single bit of it. फर्स्ट बॉल 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।